हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रिचा। आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे में हम स्ट्रोक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, स्ट्रोक होने पर आपको क्या करना है और इसका क्या इलाज है। हम ये भी जानेंगे कि आज की डेट में यंग पॉपुलेशन में स्ट्रोक क्यों कॉमन है। आज स्ट्रोक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर सुरेश, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। लास्ट 17 ईयर्स से डॉक्टर सुरेश अपोलो हैदराबाद में वर्किंग है और डॉक्टर सुरेश को मोर देन 1400 पेशेंट के इंट्राक्रेनियल न्यूरो इंटरवेंशन का एक्सपीरियंस है। आज सर हमें बहुत सारी स्ट्रोक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। Yeah, very good morning, Dr. Richa. I'm happy to be here uh, to interact with about the stroke, pulse stroke awareness and stroke treatments. Yeah. ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन सर कि व्हाट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। जनरली लोगों को यही इंफॉर्मेशन होती है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स करते हैं, तो व्हाट इज दिस ब्रांच, काइंडली आप इसमें थोड़ा सा इसको इजी वे में हमारी ऑडियंस को समझाइए। Yeah, that's a very pertinent and interesting question. So we work along, मतलब हम उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन के साथ एज अ पार्ट ऑफ टीम वी वर्क एंड डू द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक थेरेपीज. सो क्या होता है इसमें बेसिकली without any cutting opening of the brain or the any organ of the body, we can intervene, go inside the body and treat that particular disease. So this branch, I got interested in probably in early 2000s when I was doing my post-graduation in Chandigarh. At that time, my mentors, my teachers used to treat all the patients, treat diseases related to either brain or the liver or the peripheral vascular. So all those things without any kind of interference or cutting opening of the body, we go inside under the guidance of X-rays or ultrasound and clear the problem. And the patient will be completely relieved of that particular disease immediate next minute. So patient will be having this complete relief or sense of relief of the symptoms and without any external kind of disturbance, anything. So it is kind of if you have a problem of in your kind of if your city has multiple underlying under that you have some tunnels or some wirings, everything, some got damaged. So you need not open the earth or open something externally, but you do inside only without disturbing the traffic or normal the environment over there. So it is similar to that, and the kind of the patient's happiness or whatever it says, the feeling of the recovery, which is faster and without any what do you say, open surgery or open cutting kind of thing is there in that. And it is very intricate, challenging, and you can apply all your knowledge related to anatomy as well as the physics, everything onto the patient's pathology, patient's disease, and get a better outcome. And it's very satisfying. Yeah. सो इन शॉर्ट, हम पेशेंट को कोई इंसीजन और कोई सुचर नहीं लगा रहे आउटसाइड बॉडी, वी आर Yeah. गोइंग वेसल्स एंड हम वेसल्स के थ्रू इंटरवीन कर रहे हैं टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिसीज। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन सर। आज की डेट में हम यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमनली स्ट्रोक देख रहे हैं। 45 ईयर से कम एज में स्ट्रोक कॉमन हो गया है, जो कि पिछले 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। तो सर क्या कोई लाइफस्टाइल इश्यूज हैं या कोई हमारे खान पान की परेशानी है जो कि स्ट्रोक इतना कॉमन होता जा रहा है? Yeah, this trend I have been observing for the probably last 4 or 5 years more commonly, especially after COVID. So during COVID time, I've seen more patients of young patients getting these clots inside the brain blood vessel. So उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी हमने केसेस बहुत सारा देखा हुआ है. But once COVID, like COVID recovered is there now, COVID is not there. Still, we are seeing more and more patients. The reason is I can say that the increased stress in the lifestyle and whatever the dietary habits are not that great. The dietary habits because of the rapid you have more work to do, but you have less work, less time to spend on the kind of diet you want to have. So you have ready-made channels of getting the food. Ready-made food it is there. सर क्या आप थोड़ा सा बता सकेंगे हमारे ऑडियंस को कि स्ट्रोक क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक इज, हाउ द वेसल गेट ब्लॉक और बर्स्ट इनसाइड द ब्रेन? So first of all, I don't know about this part of country. Stroke is synonymous with heart stroke. You know, या so first we need to get out of that heart. The stroke is that kind that is done basically for the brain stroke. So brain stroke, जो paralysis या लकवा पड़ना. So that is a classical symptom.
which probably 20 years ago, it is like an incurable disease, you will be bedridden kind of thing. So now it is treatable. And the symptoms, क्या क्या रह सकता है? जो क्लासिकल सिम्टम्स है कि पेशेंट को हाथ पैर मूव नहीं कर सकते, पैरालिसिस जो बोलते हैं। बट इसके अलावा एक जो स्ट्रोक का सब टाइप बोलते हैं, माइनर स्ट्रोक और इशारा वाला स्ट्रोक, मतलब टीएए बोलते हैं, इशारा आता है कि बस 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए या 1 घंटे के लिए, "सर ब डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस एक बार उँगली में थोड़ा-सा सूनपन हो गया या फिर मुँह थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, उसके बाद ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अभी मैं ठीक हूँ। अभी अभी क्या करना है सर अभी ठीक है।" बट वो पेशेंट का अटेंडेंस लेके आएँगे, कुछ ऐसा हो गया करके। दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट सिम्पटम दैट कि टीएए जो हम बोलते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, जो सिम्पटम्स बस कुछ देर के लिए आते हैं और उसके बाद डिसअपियर होते हैं। बट वो दैट इज़ गिविंग ए वार्निंग साइन टू यू दैट अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करो या मेडिकेशन से या लाइफ़स्टाइल से या मॉडिफ़ाई जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए, ताकि आगे जो मेजर स्ट्रोक ना हो पाए। So the body is giving kind of attack to you, this the warning to you. It's a warning stroke. So that is one type of stroke. So the other thing is sometimes a sudden kind of headache or imbalance, or you are losing the grip of your shoes or chappals, and stuttering of speech. जो भी आप बोल रहे हैं थोड़ा ज़बान मोटा हो गया बोलना। So these are all the symptoms of the stroke. जो ब्रेन स्ट्रोक जो कारण आप पूछ रहे थे, वो उसके 2 कारण हो सकता है। एक तो है अपना ब्लॉक होना, ब्लड वेसल ब्लॉक होना, मतलब ब्लड वेसल का कम ब्लड का कमी हो रहा है ब्रेन को। ब्लड में जो ऑक्सीजन या ग्लूकोज़ जो सप्लाई होना है, वो नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड एज़ इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब ब्लड का कमी हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो ब्लीडिंग ज़्यादा जो ब्लड वेसल के अंदर रहना है, जो खून, वो बाहर आके फैल गया खून का जो ब्रेन के अंदर, दैट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। बट इस्केमिक स्ट्रोक ज़्यादातर हम देखते हैं, जो भी हम आज बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द इस्केमिक स्ट्रोक। और 10 पेशेंट्स में 8 पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक रहता है। ओके व्यूअर्स, स्ट्रोक को सर ने 3 सिंपल वे में बताया। वन इज टीआईए मींस ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसमें स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आते हैं, झंझनाहट होती है, लेकिन वो तो चला जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है कि आपको आगे कोई मेजर स्ट्रोक आ सकता है, तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। गो टू योर डॉक्टर, आपको जरूर डॉक्टर से मिलना है। सेकेंड इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक यानी आपकी ब्लड वेसल में कोई क्लॉट आ गया और ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो गई। एंड थर्ड इज हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें हमारी ब्लड वेसल ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्रेन में रप्चर हो जाती है और जिसे हम ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। सो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ज्यादातर टाइम हम कॉमन से सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। हम यही देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि पता नहीं चलता कि स्ट्रोक है और लोग लेट प्रेजेंट करते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कॉमनली स्ट्रोक के हो सकते हैं और जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है? इग्नो एज़ जैसे मैंने पहले बताया कि माइनर सिम्पटम्स, जो माइनर सिम्पटम्स जैसा थोड़ा-सा नमनेस होना या फिर थोड़ा-सा ज़बान मोटा होना, ये थोड़ी देर के लिए आके जाना है, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और जो ऑब्वियस सिम्पटम्स है, जो पैरालिसिस जैसा हो गया, इमीडिएटली हम अटेंशन ड्राइव करना है, एंड अटेंडेंट्स हैज़ टू गाइड द पेशेंट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल इज़ दैट आपको फीवर हो गया, तो आप आपका फैमिली फिजिशियन के पास जा सकते हैं। आपको टाइफाइड हो गया, डेफिनिटली यू कैन गो टू आपका फैमिली फिजिशियन। एंड आपको स्ट्रोक हो गए तो ब्रेन स्ट्रोक हो गए तो देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू गो टू स्ट्रोक रेडी सेंटर। बिकॉज़ या इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 2 प्रॉब्लम्स होता है जो हमारे पास। मैंने 350 थ्रोम्बेक्टमीज़ जो भी स्ट्रोक इंटरवेंशन किया, तो अपना डाटा एनालाइज़ किया, तो मेरे पास जो भी एक्चुअल 6 आवर्स के अंदर आने वाले पेशेंट्स हम देख लिए, तो ओनली 60 पेशेंट्स वर अंडर 6 आवर्स। बाकी जो भी 270 पेशेंट्स which are like 3/4 of the patients are out of window period of 6 hours and they came late. So the reason क्या है, एक तो पेशेंट को पता नहीं होता है कि ये स्ट्रोक सिम्पटम्स है। दूसरा क्या है कि they will go to couple of doctors who are close to them or family physicians, and it is not their mistake or the mistake of the family physician, but the thing is we need to go to a center which are specialized in stroke, because 2 ही ट्रीटमेंट है, वो 2 ट्रीटमेंट हर जगह में नहीं मिलता है। इट इज़ ऑल और नन काइंड ऑफ थिंग। ओके, बहुत सिंपल से सिम्टम्स जैसे आपको टिंगलिंग होना, झिंझनी होना, आवाज लड़खड़ाना, होंठ का या चेहरे का तिरछा हो जाना, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं।
आपको इसमें से कोई भी चीज इग्नोर नहीं करनी है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम इज ब्रेन, आप जितना डिले करोगे उतना आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचोगे वो जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट है कि सही क्लिनिशियन के पास पहुंचना। आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रोक के इलाज में कुछ इंटरवेंशन होते हैं जो कि प्रॉपर स्ट्रोक मैनेज करने वाले हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। तो अगर आपको स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम लगता है तो आपको उसी हॉस्पिटल को अप्रोच करना है जहाँ पे स्ट्रोक की टीम हो। बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि अगर स्ट्रोक जैसा कोई सिम्टम लग रहा है तो कहाँ जाना है। तो आप एक बार बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में हमें पहुंचना चाहिए सबसे पहले। अब अगर ये क्वेश्चन को हम आंसर करना है तो एक जो स्ट्रोक ट्रीटमेंट पाथवे को एक बार अंडरस्टैंड करना है, तो कॉमन मैन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हार्ट अटैक हो गया तो आपको सबको पता होगा कि हार्ट अटैक डायग्नोज करने के लिए ईसीजी चाहिए होता है। ईसीजी चाहिए होता है। जैसा ब्रेन स्ट्रोक को अटैक करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई चाहिए होता है। यस। सो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट की हेमरेजिक स्ट्रोक है, इश्केमिक स्ट्रोक है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। तो वो मशीन्स अवेलेबल होना है, जो सीटी या एमआरआई, उसमें भी हाई एंड मशीन्स अवेलेबल होना है, एक तो चीज़ है। उसको इंटरप्रेट करने वाले डॉक्टर साहब भी रहना है, जो रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट। उसके बाद थ्रोम्बोलिसिस करना है कि नहीं करना, थ्रोम्बोटॉमी करना है करना, वो डिसीजन लेने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट जो हाईली ट्रेन्ड चाहिए होता है। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसे थ्रोम्बेक्टमी करने के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो भी डॉक्टर चाहिए होता है। और न्यूरोसर्जन इन केस ऑफ एनी ब्लीडिंग इज देयर, हेमरेजिक स्ट्रोक इज देयर, वो ट्रीटमेंट करने के लिए न्यूरोसर्जन चाहिए होता है। सो ये सब डॉक्टर्स एक जगह में जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो भी 24/7। सो अपोलो इज वन ऑफ such hospitals, Apollo group of hospitals in Hyderabad. So all of them are stroke ready centers having this group of individuals or doctors at one place who are available 24/7. ओके, तो स्ट्रोक रेडी सेंटर मींस ऐसा सेंटर जहां पे आपको सीटी एमआरआई की डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी हो, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि स्ट्रोक है। नेक्स्ट आपके पास में रेडियोलॉजिस्ट हो जो उस रिपोर्ट को पढ़ सके, और आपके पास में न्यूरोलॉजिस्ट प्लस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हो, ताकि वो थ्रोम्बोलिसिस करना है या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करना है, ये दो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, उसके बारे में डिसीजन ले सके। जिस सेंटर में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वहां आपको अप्रोच करना है, और एज सुन एज पॉसिबल, बिना किसी एक मिनट के भी डिले के। तो सर, लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज दिस गोल्डन आवर ऑफ स्ट्रोक, ये क्या होता है, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि आप तुरंत पहुंचो। या दैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा मान लो हेड ट्रॉमा के लिए, मतलब अब चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी गोल्डन आवर रहता है। हार्ट अटैक के लिए भी गोल्डन आवर रहता है। सिमिलरली फॉर ब्रेन स्ट्रोक आल्सो वी हैव ए गोल्डन आवर, क्योंकि जो भी हम दवाई देते हैं वो कुछ टाइम के लिए काम करता है, उसके पार करके हम दिया तो वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। उसका भी जो भी बेनिफिट है, फायदा कम होता है। तो यूजुअली अगर हम, मैंने जैसे बताया 2 ही ट्रीटमेंट है, कि नस बंद हो गया अभी इश्केमिक स्ट्रोक में, नस को खोलना है। तो नस को खोलने के लिए जितना हम खोल दिए तो, जितना जल्दी हम खोल दिए तो क्या होता है कि जो भी डेड और डैमेज ब्रेन टिश्यू का जो एक्सटेंट है कम होता है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो इश्केमिक स्ट्रोक में नस बंद होता है। नस क्यों बंद हो गया? कोई अंदर का क्लॉट आके उसमें रुक गया। उसकी वजह से ब्लड को ऑक्सीजन ग्लूकोज कम हो गया और उसको इमीडिएटली खोलना है। तो उसके लिए 2 ट्रीटमेंट है, थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी। सो उसके लिए एक टाइम पीरियड है, एक टाइम फ्रेम है, जो थ्रोम्बोलिसिस के लिए 4.5 घंटा है, 4.5 hours। Whereas for thrombectomy, the approved guidelines in selected cases, it is 24 hours. So 24 hours, 4.5 बट ऐसा नहीं कि आप विंडो पीरियड 24 आवर्स है तो 24 आवर्स तक वेट करके जाओ, ऐसे नहीं है। सो जितने जल्दी आप पहुंच सकते हैं उतना डैमेज कम रहता, जो भी हम इलाज करते हैं उसका इफेक्ट भी, असर भी अच्छा रहता। जैसा सर ने बताया कि आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल ब्लॉक है, तो आपके ब्रेन के सेल्स की डेथ हो रही है। जितना जल्दी आप वो वेसल्स ओपन करेंगे उतना ज्यादा हमारा ब्रेन बचेगा, साल्वेज होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको पहुंचना है हॉस्पिटल। सर, हम नेक्स्ट बात स्ट्रोक मैनेजमेंट से रिलेटेड कर लेते हैं कि स्ट्रोक का मैनेजमेंट कैसे होता है, और हमारी न्यूअर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें कोई रोल है या नहीं है, एंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। बेसिकली वंस अ पेशेंट कम्स, तो जैसा मैंने बोला कि कुछ तो पहले हमें करना है, क्या सीटी स्कैन या एमआरआई करना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि थ्रोम्बोलिसिस फिट होता है कि थ्रोम्बेक्टमी फिट होता है, बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम एंड कहाँ ब्लॉकेज है, उसके ऊपर वी विल डिसाइड। सारा जो हमारे सिस्टम्स ऑफ केयर हम देखेंगे करेंगे तो दे रन इन पैरेलल।
I don't know what it's called as in Hindi. तो एक जना एक काम करता है, दूसरा जना एक काम. So these things are not done in a serious manner. So एक जना सीटी करता रहता है, दूसरा जना पेशेंट से अटेंडेंट से बात करता रहता है, तीसरा जना कैथ लैब रेडी करता रहता है, और they'll be using thrombolysis प्रिपेयर करते रहते हैं. So तीन चार टीम they will be running like working parallelly to give the treatment in time. सो जो भी आप सो दिस इज हाउ द स्ट्रोक पाथवे यूजुअली वर्क्स. सो इसमें अगर लास्ट 2 या 3 साल में तो एआई का रोल आ गया. एआई का रोल इसीलिए है कि एक तो इन हॉस्पिटल जो सिस्टम्स को फास्ट करने के लिए, जैसे सीटी एमआर करने के बाद इंटरप्रेट करके ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर, अभी एआई का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है मेरे मोबाइल में और मेरे कोलीग्स के मोबाइल में, सब में. सो पेशेंट आ गए तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता है, एंड पेशेंट को अगर थ्रोम्बोलिसिस एलिजिबल है तो इमीडिएटली जो भी स्कैन का इमेज हमारे मोबाइल में, डेस्कटॉप मोबाइल होम स्क्रीन में इमीडिएटली आ जाता है. आप जैसे विद इन ए क्लिक ऑफ बटन यू कैन सी व्हाट इज द सीटी स्कैन इमेज and whether it's eligible or not, also that AI will tell you. ओके, Eligible for रियल thrombus. हाँ, लाइक So स्कैन AI आपके फोन में आ गया है. ये सो आप शायद मान लो घर में है तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन टेल इमीडिएटली दैट या दिस पेशेंट इज एलिजिबल, यू कैन गिव द thrombolysis or you can try the patient to thrombectomy. So टाइम वेस्ट नहीं रहेगा, and with the advent of this particular AI technology we can decrease the time one, and we can take a decision, combined decision, more objective decision जो भी है CT scan या MRI based इंटरप्रिटेशन जो भी है, मोर इंटरैक्टिव एंड मोर ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले लेंगे. बहुत सारा टाइम बच जाता है इसमें. नाउ अपोलो हैज गॉन टू एन एक्सटेंड नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि अभी स्ट्रोक जो भी ट्रीटेबल है, जैसे तेलंगाना में हैदराबाद इज इन द सेंटर, सो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द रेडियल ऑफ अराउंड 150-200 kilometers. The topography is like that, geography is like that. So what we are the Apollo is concentrating now, like we collaborated with all the sister or spoke hospitals. So if we install this particular software into the CT scans of all those hospitals, so जो भी पेशेंट सीटी स्कैन के लिए होता है वहां पे क्या होता है कि डायग्नोसिस ही डिले होता है वहां पे पेरिफेरी में. सो अगर हम ए डाले वहां पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस हॉस्पिटल में डालें, सो एंड दोज इमेजेस आर अपलोडेड टू द हॉस्पिटल डॉक्टर्स वी हु आर सिचुएटेड इन हैदराबाद, एंड उसको हम डायग्नोज करें, इमीडिएटली विल गिव द इंफॉर्मेशन दैट या दिस पेशेंट इज अ स्ट्रोक पेशेंट, आप इसको थ्रोम्बोलिसिस करो, आप या फिर उसको थ्रोम्बोटमी के लिए प्रिपेयर करो पेशेंट को. सो पेशेंट को वो जो पेरिफेरी में जहाँ पे जो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन गिव बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर विद द हेल्प ऑफ द एआई. सो दिस इज हाउ वी आर bridging the gaps of the stroke treatment with the help of AI. Yeah. ओके, वेरी नाइस सर. मींस एआई से हम टाइम सेव कर रहे हैं, दैट गोल्डन टाइम, ताकि ब्रेन का हार्म नहीं हो. और पेरिफेरल सेंटर्स में भी जहाँ पे इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं है या डायग्नोसिस किसी वजह से डिले हो रहा है, वो भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, सो दैट हम रैपिडली डायग्नोस और ट्रीट कर सके. तो सर, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अफेक्ट होती है, और कैसे हम एआई या फिर अपनी न्यू मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से पोस्ट स्ट्रोक लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? Stroke is a health problem and it's a socio-economic problem. In the sense, if he is a breadwinner for the family, that entire family is now in terms of economic the financial things, they will be in doldrums. So it's very important if you can give back that functional life to the patient. So जो भी stroke care है, जो इसमें क्या है कि we are giving the treatment in the time window, and in that sense, so अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें तो आई सेड 2/3 ऑफ द पेशेंट वोंट डू वेल. अगर ट्रीटमेंट करें तो 2/3 ऑफ द पेशेंट्स डू वेल. 70% पेशेंट्स अच्छा होता है. 20 to 30% अच्छा. It depends upon their other comorbidities, but usually 70% is a good percentage, I can say. You can't expect 100%, but usually our population, our people will expect 100% recovery, but 70 is still a good recovery. So that's what I'm trying to tell you. So इसके अलावा जो भी हम treatments देते हैं stroke का, that is not only pertaining to the hospital stay. उसके बाद भी 1-2 महीने के लिए रिहैबिलिटेशन चलता है. एंड रिहैबिलिटेशन मीन्स फिजिकल रिहैबिलिटेशन. जैसा पे थोड़ा सा वीकनेस हो अभी रह गया, वो वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज रहता है. सो अलॉन्ग विथ अवर फिजियोथेरेपी टीम, रिहैबिलिटेशन टीम, स्पीच थेरेपी रहता है. सो ऑल दोज थिंग्स विल गो इन कम इन टू पिक्चर. सो दोज विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months. सो स्ट्रोक पेशेंट जो भी होता है, सो सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
दे हैव टू हैव फॉलो अप। सो ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ दिन के बाद दोबारा बंद कर देते, जो सब टैबलेट्स बंद कर देते, और वी हैव सीन पेशेंट्स अगेन वो आ गया 6-7 महीने के बाद कि अगेन स्ट्रोक लेके आ गया कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो गए, तो इसीलिए बंद हो गए, बंद कर दिया हमने। तो ऐसा नहीं है। तो कुछ दवाई हम सुपरविजन में रहना है, हम डोज कम करते रहेंगे, बट देयर आर सर्टेन ड्रग्स वी नीड टू गिव फॉर लाइफ लॉन्ग। सो लाइफस्टाइल और ये ड्रग्स सारा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, सर ने हमें कितने अच्छे से बताया कि अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो अप टू 60 to 70% लोगों की फंक्शनल लाइफ बेटर होती है, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रोक के बाद फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिल सके, आपको फिजियोथेरेपीज प्रॉपर मिल सके, और साथ ही साथ हम स्ट्रोक के कारण का पता करके उसे ट्रीट कर सके। तो समटाइम इट टेक्स लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। तो फॉलो अप नहीं छोड़ना है। अगर आप स्ट्रोक के पेशेंट हो तो अपने डॉक्टर को आपको हमेशा टाइमली फॉलो करना है। अब हम स्ट्रोक रिलेटेड मिथ्स के बारे में बातें कर लेते हैं कि क्या क्या कॉमन मिथ है, और सर उन्हें हमें क्लैरिफाई करेंगे। तो पहला मिथ है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि स्ट्रोक आने पर हाथ और पैर की वीकनेस होती है। इज इट सर? क्या हमेशा हाथ पैर की वीकनेस होती है स्ट्रोक आने पे? Yeah, it's a good question, ma'am. Actually, so but most commonly what we see as a stroke symptom is हाथ पैर काम नहीं करना, मतलब लकवा पड़ना, और स्पीच इश्यूज, या मुंह टेढ़ा होना, या फिर आपका जो रूलिंग ऑफ सलेवा जो बोलते हैं वो रहना, वो सब क्लासिकल सिम्टम्स है। बट नॉन क्लासिकल सिम्टम्स, नमनेस रहना, या फिर हेडेक रहना, या फिर इम्बैलेंस रहना, या फिर बोलना बंद करना, बोलती बंद होना, या जबान मोटी होना, ये सब भी सिम्टम्स है स्ट्रोक का। नेक्स्ट मिथ है सर कि स्ट्रोक मींस ब्रेन में ब्लीड होना। इज इट ट्रू? इट ऑलवेज मीन दैट देयर इज अ ब्लीडिंग इनसाइड आवर ब्रेन? या एक्चुअली ऐसा होता है कि क्लॉट नस के अंदर बन गया तो स्ट्रोक हो जाता है, इश्केमिक स्ट्रोक हो जाता है। अगर दिमाग के अंदर क्लॉट बन गए तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो इलाज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इश्केमिक स्ट्रोक में क्लॉट जो भी है नस के अंदर बन के वो पूरा ब्लड सप्लाई खत्म होता है, जैसा आपका घर पे पावर सप्लाई बंद होना या वाटर सप्लाई बंद होना, इट इज इक्वल टू दैट। सो हम बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे भी ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकते, तो दैट इज इश्केमिक स्ट्रोक। वेरएज बाढ़ आ गया, पूरा आपका घर पूरा ये वाटर से फैल गया, तो देन इट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। सो इन बोथ द सिचुएशंस यू कांट वर्क, बट द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। नेक्स्ट मिथ कि आपको स्ट्रोक आता है तो आपको एस्प्रिन ले लेनी चाहिए। Yeah, so this the extension of the same question, the same answer. So hemorrhagic stroke में अगर blood thinners हम दे देंगे, जैसा already bleeding हो रहा है, तो हम blood thinners देंगे और खून बह जाएगा और रिस्क हो जाएगा. So always go to a relevant doctor, specialist, neurologist, and seek his assistant, seek his advice, get the CT scan or MRI, whatever is advised. एंड आप डायग्नोज करो, पहले वो इश्कीमिक है, हेमरेजिक है, उसके बाद ही एस्पिरिन या फिर थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बेक्टमी। तो इश्केमिक स्ट्रोक हो गए तो ऑब्वियसली माइनर स्ट्रोक हो गए तो एस्पिरिन का काम अच्छा रहता है। हेमरेजिक स्ट्रोक हो गए तो एस्पिरिन अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो प्लीज एस्प्रिन नहीं लेनी है घर में, क्योंकि अगर वो आपका हेमरेजिक स्ट्रोक है, आपके ब्रेन में ब्लीड है, तो वो और बढ़ जाएगी। तो डोंट टेक एस्प्रिन बाय योर ओन, गो टू योर डॉक्टर और अ स्पेसिफाइड डॉक्टर फॉर स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट मिथ की स्ट्रोक हार्ट इशू है, दैट यू ऑलरेडी क्लियर्ड बिफोर, बट वंस अगेन। Yeah, so I've seen this in newspapers also. Like one of my senior colleague has written an article in the stroke on stroke day. So the picture given is heart attack, like जैसा patient का picture है. So the entire article is on brain stroke, but the picture is given as heart stroke. So that is there in everywhere. So I don't know about North India, but in South India it is very common that स्ट्रोक इज सिनोनिमस विथ हार्ट अटैक। बट स्ट्रोक जो भी WHO वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का या फिर WHO का जो भी कॉइन टर्म किया है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर ब्रेन स्ट्रोक। ओके, सो नेक्स्ट मिथ है सर की स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल तक ही लिमिटेड है। इज इट इज इट ट्रू, और शुड वी फॉलो बियॉन्ड द डिस्चार्ज आल्सो? या जो भी हम बोलते हैं पेशेंट्स हु डिडंट रिकवर कंप्लीटली, सो पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम बोलते हैं कि हमने जो भी ट्रीटमेंट किया 50% ही है, और 50% बच गया, तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि सी आप आगे एक्सरसाइज करना होता है या स्पीच थेरेपी करना होता है, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना होता है। एंड इफ द पेशेंट इज काइंड ऑफ सेमी बेड रिडन, सो नर्सिंग केयर भी चाहिए होता है, सो दैट वी कैन अवॉइड
secondary issues like bed sores or pneumonia, all the things. So we need to stress upon this thing, especially if the patient is coming late and the recovery is not complete. And वो patients के लिए definitely next 3 months are going to be very critical. Next 3 महीना बहुत important है. उसमें आपको physical rehabilitation, speech therapy और मॉडिफाइंग द रिस्क फैक्टर्स वो सब इम्पोर्टेंट है. एंड पेशेंट को नॉर्मल लेवल को लेके आने के लिए दीज 3 इम्पोर्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू लूज दिस टाइम बाद में रिकवरी अगर मान लो बाद में रिहैबिलिटेशन करेंगे उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना आप पहले 3 मंथ्स में रहता है इम्प्रूवमेंट. तो पेशेंट को यही बोलते हैं हम अगर पूरा रिकवरी नहीं हो रहा है तो हमने सिर्फ 50% किया, 50% बच गया और अभी ये आपके हाथ में है और पूरा आपको एक्सरसाइज करना है, हम सपोर्ट कर देंगे, ऐसे करके बताएंगे. एंड दैट इज ट्रू. ओके, सो स्ट्रोक के मैनेजमेंट में आफ्टर हॉस्पिटल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो सर लास्ट में एक बात हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दीज स्ट्रोक्स. क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं इन्हें प्रिवेंट करने के लिए? The prevention is, as all our elders said, the prevention is better than cure. The prevention actually takes more effort than treatment. Treatment is one doctor available at one time on given day is sufficient. But prevention starts at multiple levels and takes years to have a good health in a community or in our family per se or for individual. So it starts one at individual level and at family level and community level, government level, hospital level. So everybody has a role in prevention. At individual family level, we need to stress upon a good dietary habits, good lifestyle habits. Don't take too much of stress in the life. So these are all very important and proper health checks in time. And if you have an history of diabetes or hypertension in the family, regular checkups in the form of blood tests or blood pressure measurements is important. And healthy lifestyles in the form of exercise. So this is very important. So these are all modifiable factors which should be pursued and which should be kind of stressed upon at family level or at individual level, at school level. So you should give some kind of education in terms of healthy lifestyle, healthy dietary habits, and avoidance of risk factor like smoking and alcohol, excessive alcohol intake. So we need to give more awareness campaign, do at government level or NGOs level or community level. So if you create awareness levels about the risk factors, what are the risk factors that are causing the stroke, and how to recognize it early, and how to treat it early, how to reduce the morbidity, जो भी functional outcome को अच्छा कैसे करने का, वो सब हम नॉट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एज वेल एज ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हम दोनों देखेंगे तो देन इट गिव्स अ वाइडर पिक्चर. एंड यूएस में एंड मेनी कंट्रीज में यू हैव द डायल नंबर लाइक 911 है, आप डायल करो इमिडिएटली. स्ट्रोक हो गए तो इमिडिएटली दिल वट एवर द सिम्टम यू हैव. सो आई सी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री भी आई थिंक देर आर एफर्ट्स टू पुट अप लाइक 108 है, 104 है. सो हमारा स्टेट में 108 है. So ambulance, government ambulance will come and immediately triage you for the nearest hospital. Similarly, government can have a major role in designing the programs. So the days like World Stroke Day is one very important thing. Uh, this year the message is you have to be greater than the stroke. So you need to know the risk factors and treat them early. And if at all stroke happens, treat it early so that you stand again, you walk again, you do the work again, and you be what you were before. So these are all important. Yeah. So as sir said, we as an individual we can contribute our society by our health. हम अपने रिस्क फैक्टर अवॉइड करें, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हम स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना जाने, और हाउ टू अप्रोच अ हॉस्पिटल एंड व्हेन टू अप्रोच अ हॉस्पिटल, इसका भी इंफॉर्मेशन रखें. Okay, thank you so much, sir. Thank you for being here. Thank you for spreading awareness about stroke discussion. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir, for being here and for spreading excellent knowledge and awareness about stroke. Hope ये information आप सभी लोगों के लिए useful होगी और future में आने वाले हम सारे stroke से बच सकेंगे. और unfortunately अगर कोई stroke होता है तो हम timely hospital में जा करके stroke से related treatment लेंगे.